alcohols are actually hydroxy derivatives of alkanes. Suppose alkanes, they are the simplest hydrocarbons, and if we remove one hydrogen atom of any alkane with hydroxy group OH, then we call these class of compounds as alcohols. And if in aromatic hydrocarbons like benzene and their derivatives, if one hydrogen of benzene ring is replaced by OH group, then those aromatic compounds are known as phenols. ठीक है, benzene ring के साथ directly अगर OH group attached है, then the class of compounds are called phenols, and carbon chain के साथ अगर OH attached है, then these are known as alcohols. So alcohols and phenols may be of various types on the basis of number of alcohols, hydroxy groups. तो अगर एक OH present है बेटा, तो these kind of alcohols are known as monohydric alcohols. If two OH groups are present, then these are known as dihydric alcohols. And if three OH groups are there in a chain or in a benzene ring, you can say, then these are known as trihydric alcohols or polyhydric, you can say, if the number increases beyond that. तो एक क्लासिफिकेशन इसका ये है मोनोहाइड्रिक. मैम यस बेटा. बोर्ड में Next we'll discuss about classification of alcohols on the basis of number of OH groups. कितने OH groups, कितने hydroxy groups में present है, on the basis of that alcohols can be classified as monohydric alcohols having one OH group or dihydric alcohols having two OH groups, as you can see here, benzene ring के साथ भी और straight chain के साथ भी. If two OH groups are there, then they are termed as dihydric. And if three OH groups are there, then they are termed as trihydric. And beyond three के लिए अगर long chain में three से ज़्यादा OH groups है, then we can also use the term polyhydric alcohols. ठीक है? So this is a simple classification of alcohols and phenols on the basis of number of OH groups. ठीक है? अब बेटा मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल्स है हमारे, जिनमें एक OH group present है, that can be further classified according to the hybridization of carbon. In haloalkanes also we discussed this thing, that एक अगर functional group attached है, तो वो कौन से carbon पे attached है, उसके base पे आप three classes में we can classify sp3, because carbon basically shows three different hybrid states, sp3, sp2 and sp. तो अगर sp3 कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, तो उसमें आपको जो अल्कोहल्स होंगे, सिंपल एल्केनॉल्स जो हैं, एल्काइल अल्कोहल जिनको हम कहते हैं, दे मे बी क्लासिफाइड फर्दर एज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. अब 1 डिग्री में क्या है कि OH ग्रुप जिस कार्बन से होगा, दैट कार्बन विल फर्दर अटैच टू ओनली वन कार्बन, बाकी उसमें हाइड्रोजन होंगे. If it is a 2 degree alcohol, then OH group will be attached to such carbon which will be further attached with two different carbon. अलग अलग दो कार्बन से वो attached होगा और हाइड्रोजन उसके पास एक ही होगा. And tertiary alcohols will be such that they will not have any hydrogen with the carbon. कार्बन के आगे further तीनों valencies कार्बन से ही satisfy होंगे. For 1 degree only one carbon will be there to satisfy the valency, और दो हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन दो कार्बन, and tertiary will have only carbon atom attached with this carbon to which the OH is attached. जिस पे OH लगा है उसी कार्बन की आपने ब्रांचिंग चेक करनी है, whether it has hydrogen atom or not, and हाइड्रोजन है तो कितना सब्स्टिट्यूशन है, तो उसके बेस पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में हम क्लासिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास sp2 के अंडर ही, sp3 कार्बन के अंडर ही एलाइलिक एल्कोहल्स. एलाइलिक एल्कोहल्स वो होते हैं जिनमें अदरवाइज तो कार्बन sp3 है जिसपे OH लगा है, बट next to that sp3 hybrid carbon there will be a double bond. मतलब डबल बॉन्ड के नेक्स्ट जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड, उस पर OH ग्रुप अगर होगा, then that alcohol will be classified as allylic alcohols. This position actually
एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड अगर है, देन इट इज नोन एज allylic position. तो allylic alcohols can also be of primary, secondary, tertiary type because OH group उसमें कहाँ पे लगा हुआ है, मतलब OH group जिस कार्बन पे है उस कार्बन में फर्दर कितनी ब्रांचिंग है, that can be there because allylic और normal alkyl alcohols में यही difference है. alkyl alcohols में double bond नहीं होगा. allylic alcohols will have a double bonded carbon next to the carbon to which OH is attached. OH जिस पे लगा है उसके नेक्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड होना चाहिए, देन ओनली यू कैन क्लासिफाई देम एज एलाइलिक अल्कोहल्स. नेक्स्ट इज बेंजाइलिक अल्कोहल्स. बेंजाइलिक अल्कोहल्स होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन चेन होगी, सिंगल कार्बन, मतलब फर्स्ट जो कार्बन है चेन का, दैट मस्ट हैव OH ग्रुप. ठीक है, फर्स्ट कार्बन के अलावा और लॉन्ग चेन हो सकती है, बट उस लॉन्ग चेन में OH जो है वो फर्स्ट कार्बन पे होना चाहिए. तो दिस group is actually known as benzyl group, and this position is known as benzylic position. And such kind of alcohols in which OH group is attached to the first carbon of the chain attached to a benzene ring. बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन चेन होगी और कार्बन चेन के फर्स्ट कार्बन पे ही OH लगा होगा. So that kind of alcohols are known as benzylic alcohol. And the simplest benzylic alcohol is known as benzyl alcohol. जो आपका ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, दिस इज पॉपुलरली नोन एज बेंजाइल अल्कोहल. अदरवाइज आयुपेक नेम है इसका 1-phenyl methanol, बट इट इज पॉपुलरली नोन एज बेंजाइल अल्कोहल. ठीक है, अब ये भी कुछ बेंजाइलिक पोजीशंस है. फर्स्ट कार्बन पे OH है, उसके अलावा फर्दर कहीं पे भी ब्रांच हो सकती है, फर्दर और चेन इंक्रीज हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ चेन ऑफ 2 कार्बन, यहाँ पर इस पे एक ब्रांच आ गई है, तो दिस इज अ 3 डिग्री बेंजाइलिक, 2 डिग्री बेंजाइलिक, 1 डिग्री, तीनों ही पॉसिबल. नेक्स्ट है अगर आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 के अलावा sp2 पे अगर हम आ जाए, मींस OH ग्रुप जहां अटैच्ड है दैट कार्बन इज ऑफ 2 डिग्री कार्बन. 2 डिग्री कार्बन मींस जैसे ये कार्बन हुआ, सॉरी 2 डिग्री नहीं, दिस मस्ट बी sp2 कार्बन, मींस दैट कार्बन मस्ट हैव अ डबल बॉन्ड. तो जितने भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही OH लगा हुआ है, then that position is known as vinylic position, and the simplest vinylic alcohol is this CH2 double bond CHOH. The IUPAC name is ethene 1-ol. इथेनॉल भी कह सकते हो आप इसको. तो इथेनॉल में विनाइलिक, इसको कॉमनली विनाइल अल्कोहल भी कहते हैं, and this position is known as vinylic, in which double bonded carbon has functional group. And phenols are also in this category because double bonded carbon पे directly OH attached है. ethers का अभी हम चैप्टर में हम जब हम ethers डिस्कस करेंगे then we'll discuss about ethers and their classification. nomenclature पे अभी हम जा रहे हैं. alcohols, तो alcohols are commonly known as, alcohols means अगर एक OH group present है उसमें तो हम उसका common name जो है that is given as alkyl alcohols, and IUPAC name is given as methanol. Alkanol's general name is alkanol, and for 1 carbon alkyl alcohol the name is methyl alcohol, common name. IUPAC name is methanol. अब आपने करना क्या है, जो एल्केन का E है उसको रिप्लेस कर देना है OL सफिक्स से. ठीक है, तो IUPAC नेम विल बी गिवन बाय द नेम ऑफ पेरेंट एल्केन प्लस OL सफिक्स, और OL सफिक्स जब ऐड करोगे तो एल्केन का E आपने डिलीट कर देना है. तो फॉर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स व्हेन 1 OH इज देयर द सफिक्स यूज्ड इज OL all, but if the alcohols have more than 1 OH group then diol, triol will be used accordingly. So let us discuss this table first. First is the simplest one, methyl alcohol. IUPAC name is methanol. Second one has 3 carbon chain, straight chain में अगर है बेटा 3 carbon, the common name is normal propyl alcohol because this is the straight chain isomer, position isomers है ये. तो ये जो है सॉरी चेन आइसोमर्स अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो ये चेन स्ट्रेट चेन है, तो दिस इज नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल. IUPAC नेम में हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन वेयर OH इज अटैच्ड. तो 1, 2, 3 एंड द नेम विल बी प्रोपेन 1-ol.
Second example, isopropyl alcohol is the IUPAC name, and isopropyl alcohol is the common name. IUPAC name will be, because here we'll give numbering in this way that this carbon will acquire position 1 and this carbon will acquire position 2. ठीक है, तो ये जो नंबरिंग और ये वाला कार्बन हो गया आपका 3 वाला. तो accordingly we can give numbering and the name will be propane because 3 carbon atoms are there, तो straight chain का name propane and 2-ol. Second position के साथ आपने suffix all use करना है. तो here you will have propane 2-ol is the IUPAC name. Now next we have 4 carbon straight chain है, common name normal butyl group है ये. अब यहाँ पर बेटा ये देखो ये OH जिस कार्बन पे लगा हुआ है 4 कार्बन चेन है, बट दिस कार्बन इज अ 2 डिग्री कार्बन. ओके, तो 2 डिग्री का कार्बन पे अगर OH है 4 कार्बन चेन के साथ, देन द नेम यूज्ड इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप. तो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड if the OH group is attached is at terminal carbon which is a 1 degree carbon और उसके adjacent carbon पे branch present है, मीन्स फर्स्ट कार्बन जो है जिसपे OH लगा है वो ब्रांच नहीं है, वो 1 डिग्री ही है, उसका नेक्स्ट कार्बन आपको 2 डिग्री मिलेगा, देन दिस ग्रुप इज नोन एज आइसोब्यूटाइल ग्रुप. ठीक है, और टर्शियरी ब्यूटाइल वो होगा जिसमें जिस कार्बन पे OH लगा है दैट कार्बन इज अ 3 डिग्री कार्बन, मीन्स इट विल बी फर्दर अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम. तो दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप. आयुपैक नेम के लिए बेटा आपने नंबरिंग देनी है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके. यहाँ पर सपोज अगर हम देखें तो दिस इज स्ट्रेट चेन compound having 4 carbon, numbering will start from this carbon to which OH is attached. So 1, 2, 3, 4, total 4 carbon, butane 1-ol. Okay, and now for this second one, as OH is attached to the if we number chain select हमने ये 4 carbon की करनी है, if we start numbering from here तो यहाँ पे ये थर्ड पे OH आ रहा है, but we will select numbering from this side according to the lowest Locking rule that आपने lowest position उसको assign करनी है functional group को. ठीक है, तो name will be butane 2-ol. तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का आयुपैक नेम जाएगा. आप देखो चेन एक तरफ चले जाओ जहां लॉन्गेस्ट है, यहाँ से 3 आ रहे हैं, यहाँ से भी 3 आ रहे हैं, तो एनी चेन यू कैन सेलेक्ट. नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन 1, 2, 3. तो सेकंड पे आपको एक मिथाइल ग्रुप की चेन मिल रही है, ब्रांच सॉरी, एंड व्हेन यू नेम दिस कंपाउंड इट विल बी 2 मिथाइल प्रोपेन 1-ol. लेट मी नंबर दिस कंपाउंड. ये हो गया 1 and this is 2 and this carbon is third carbon. If we select this chain and this carbon is not at all included in the chain, so it will be considered as a substituent or branch. If substituent में एक ही carbon है तो name will be methyl और वो second position पे है तो name will be 2 methyl, then parent name propane 1-ol. Clear? So 2 methyl propane 1-ol is the name of isobutyl alcohol. अब ये tertiary butyl alcohol है, इसके लिए भी हम chain select कर लेते हैं. This straight chain I am selecting this time. This is first carbon, this is second carbon, and this is third carbon. तो 1, 2, 3 कार्बन चेन प्रोपेन और ब्रांच है सेकंड कार्बन पे, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol. ठीक है, क्योंकि सेकंड कार्बन पे OH है और सेकंड कार्बन पे ही मिथाइल ब्रांच है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol विल बी द आयुपैक नेम ऑफ दिस टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. अब नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप है, तो जितनी बार OH रिपीट हो रहा है आपको उसकी पोजीशन के साथ डायॉल ट्रायॉल यूज करना है. तो दिस इज 3 कार्बन चेन प्रोपेन 1, 2, 3 तीनों कार्बन पे एक OH है, तो नंबरिंग आप सिमेट्रिकल है, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो. तो नेम विल बी प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायॉल. आई एम राइटिंग वन कंपाउंड, इफ यू कैन टेल इट्स नेम. CH2OH
CH2OH. ठीक है? Can you name this compound? 2 carbon chain and both carbon atoms have one OH group. What will be the name of this compound? This compound is commonly known as ethylene glycol. A common name है. IUPAC name? Who will tell? Ethane 1,2-diol. Yes. IUPAC name is ethane 1,2 डायऑल. अब एक डिफरेंस देखो, हम अभी यहाँ पर ऑल ऐड कर रहे थे तो हम ई रिटेन नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑल स्टार्ट्स विद वोवल साउंड एंड ई इज टू बी डिलीटेड. बट व्हेन वी आर राइटिंग डायऑल ट्रायऑल तो वोवल साउंड नहीं आ रही, डी या टी की साउंड है. इन दैट केस यू नीड टू रिटेन ई, डिलीट नहीं करना. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है व्हेन यू आर राइटिंग नेम्स फॉर dihydric or trihydric or polyhydric alcohols which have more than one OH groups. तो all suffix की जगह आपको diol triol suffix लगाना पड़ता है. तो in that case you need to write E with the parent name of alkane. alkane का E आपने delete नहीं कर रहा, ठीक है? और वो delete करोगे अगर एक ही OH group है. Means whenever vowel sound is there for suffix you need to delete the E of alkane, alkene, alkyne, whatever. But if the suffix is starting with a consonant sound, then you need to retain the E of parent name. Clear? Next is cyclic alcohols. Cyclic alcohols का एक ही डिफरेंस है, आपको जो नेम देना है IUPAC नेम उनके अंदर साइक्लो प्रीफिक्स लगाना है. पेरेंट नेम जो है उसके पहले साइक्लो लगाना है. तो फॉर एग्जांपल दिस रिंग इज ऑफ 6 कार्बन एटम एंड इट कंटेन 1 OH ग्रुप. नेम विल बी साइक्लोहेक्सेन ऑल. 1 ऑल की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही OH ग्रुप है और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है. साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोपेंटेनॉल, साइक्लोब्यूटेनॉल, एनी कंपाउंड इट मे बी if the ring depends on the size of the ring. अब अगर सपोज कोई सब्स्टिट्यूशन है फर्दर तो उस सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड के लिए आपको फिर उस कार्बन को 1 नंबर देना है जिसपे OH लगा हुआ है, ठीक है? और बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट्स है जिस तरफ जा रहे हैं उधर नंबरिंग इंक्रीज करती जाओ. बट ये देखो कि सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाए. अगर ज्यादा है तो एक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट सपोज एक तरफ क्लोरीन है एक तरफ ब्रोमीन है तब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि ब्रोमीन को पहले नंबरिंग दे या क्लोरीन को. तो उस केस में आपने फिर सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करना होता है. बट हियर इन दिस केस इट विल बी 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल. अब सपोज अगर रिंग में कोई डबल बॉन्ड भी आ जाता है रिंग के अंदर, तो डबल बॉन्ड के केस में आपने क्या करना है, प्रेफरेंस तब भी OH को ही देनी है. फॉर एग्जाम्पल अभी एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड में आपको स्ट्रेट चेन वाला बता रही हूँ. इफ द कंपाउंड इज लाइक दिस CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2OH. अब इस कंपाउंड में बेटा नंबरिंग जब हम करेंगे ना तो विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड वेयर द कार्बन एटम इज अटैच्ड विद OH. तो दिस कार्बन विल एक्वायर नंबर 4, उसके बाद 2 3 4. तो ये वाला कार्बन हमारा 4th हुआ and this carbon will be 3rd, this carbon will be 2nd and this carbon will be 1st. So here we are not giving preference to multiple bond जो हमने हेलो एल्केन्स में करना है, बिकॉज हेलोजन ग्रुप जो है सफिक्स फॉर्म में नहीं आता. तो जिन ग्रुप्स के प्रीफिक्स आते हैं उनको कभी भी हम मल्टीपल बॉन्ड्स के ऊपर प्रेफरेंस नहीं देते, वहां पर आपको मल्टीपल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस देनी होगी. बट इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट विद सम मेन फंक्शनल ग्रुप जिनके सफिक्स यूज होते हैं, तो कभी भी आपने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की साइड को नहीं देखना. यू नीड टू चेक द साइड फ्रॉम वेयर द मेन फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड. तो OH इस तरफ अटैच है तो उसी कार्बन को 1 नंबर दोगे, डबल बॉन्ड चाहे बाद में किसी भी पोजीशन पे आ जाए, बट आपने वो इंक्लूड करना है. सपोज अगर ये चेन इस तरफ एक्सटेंड हो रही है जिसमें एक तरफ सिंगल बॉन्डेड चेन एक तरफ डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यू नीड टू
select that chain which includes that double bond. ठीक है, तो name will be but 3-in-1-ol. इसका जो आयुर्वेदिक नेम जाएगा, this will be but 3-in-1-ol. अब ये इन का आपको ई डिलीट करना चाहे, इन है, आइन है, वॉट एवर इट मे बी. ई इज जो बाद वाला ई आता है, ई एन ई वाला या बाई एन ई या ए एन ई, that last e is to be deleted while adding this ol. So this about the aromatic alcohols that are commonly known as phenol. अगर एक OH group है तो name is given as phenol.